بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت جائے گا مجھے آگے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس وقت میں پوری دنیا پریشان. غریب غربت میں پریشان ہے، مالدار مالداری میں پریشان ہے، تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت میں، کاشتکار کاشتکاری میں، حاکم حکومت میں. یوں کہہ دیا جائے کہ اس وقت میں پوری دنیا پر پریشانی کی چادر بچھی ہوئی ہے، اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں ہم کیوں پریشان ہیں. یہ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. ہر کوئی جو محنت کر رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، وہ راحت کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، عزت کے لیے. اب چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، جو بھی جا رہا ہے اس کو پوچھو، آٹو والوں سے، مزدور سے، تاجر سے، ملازم سے، جوتے والوں سے، کپڑوں والوں سے، جو جو لے کے جا رہا ہے ہر ایک راحت مل جا رہا ہے، چین مل جا رہا ہے، سکون مل جا رہا ہے، عزت مل جا رہا ہے. حاصل ہو نہیں رہا ہے، محنت کر رہے ہیں. تو لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اور اگر سوچتے بھی ہیں تو نادان سوچتے ہیں. غریب کی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں، میں غریب ہوں. جس کے پاس کرایہ کا مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس سے پریشان ہوں کہ مکان ہے کرایہ کا ہے. جس کے پاس مکان ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ مکان ہے لیکن چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے. جو جس سطح پر ہے اس کو اپنی راحت، چین، سکون، کامیابی اوپر نظر آتی ہے، جبکہ جس نے دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسان ہو، تمہاری کامیابی وہاں نہیں ہے جہاں تم کو نظر آ رہی ہے. اچھے مکان میں، اچھے لباس میں، اچھی سواری میں، اچھے بینک بیلنس میں، اچھی تجارت میں، اچھی ملازمت میں، اچھی ڈگریوں میں. تمہیں جہاں نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے. میں نے وہاں نہیں رکھی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بنانے والا کہہ رہا ہے. جس نے چائے بنائی اس نے خبر دی کہ ہم نے اس چائے میں شکر نہیں ڈالی. اب ہم سب اس چائے کو چمچ سے ہی لاوے میٹھی بنے. ذرا ہوا کرو نہیں یار، اپنا بیان نہیں کرتے، اپنے باتیں کر رہے ہیں. تب بنے گی میٹھی. کیوں؟ بنانے والے نے خبر دی ہے کہ چائے میں شکر نہیں ڈالی. جس اللہ نے دنیا بنائی ہے اس بنانے والے نے خبر دی ہے کہ وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہاری کامیابی جہاں تمہیں نظر آ رہی وہاں نہیں ہے. اچھے مکان میں، اچھے لباس میں، اچھی سواری میں، اچھے شاہی دسترخوان پر، جہاں تم کو نظر وہ دھوکہ ہے. یہ خبر بنانے والے نے دی. ہاں نظر آ رہا ہے لیکن وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے. آپ لوگوں نے کبھی رن میں گئے ہو؟ رن ریگستان کچھ میں ہے ہمارے یہاں، اور دیگر افریقہ میں وہاں بہت ہے. رن میں اگر کوئی آدمی جاوے اور دور نظر کرے تو اس کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ پانی کا دھوکہ، چمکتا ہوا ریت. پھر پیاس بڑھتی ہے تو پھر وہ دوسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر اندر سے آواز اب کی مرتبہ تو پانی ہے. جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں، پانی کا دھوکہ، چمکتا ہوا ریت. پیاس لگی ہے، ریگستان ہے، پانی ہے نہیں، تو تیسری طرف نگاہ اٹھاتا ہے. تو اب تو کہتا ہے اب تو 100% کا پانی ہے. کیا کہتے ہیں؟ 100% پانی ہے.
جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں، پانی کا دھوکہ چمکتا ہوا رہتا، وہ پیاسا جان دے دیتا ہے. یہ مثال ہے. انسان جہاں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے وہاں کامیابی نہیں، وہ دھوکہ ہے. اور واقعی میں دھوکہ ہے. یہ فیاٹ گاڑی جو ہے نا، فیاٹ، آج سے 25 سال پہلے اگر کسی کے پاس فیاٹ ہو تو یوں کالر رکھتا، میرے پاس فیاٹ ہے، عزت کا معیار تھی. آج اپنی دھرم پور کی کوئی بڑی پارٹی فیاٹ لے کے نکلے تو لوگ کہیں گے پارٹی ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ فیاٹ میں پھر رہا ہے. اب یہی فیاٹ 25 سال پہلے عزت کا معیار تھی، آج وہی فیاٹ ذلت کا معیار ہو گیا. چیزوں کا یہ حال ہے، جو چیز کبھی عزت کا معیار ہوتی ہے وہی چیز کبھی ذلت کا معیار ہو جاتی ہے. اور گاڑیاں ہیں کیا؟ سب پترے کی ہے، چاہے اوڑی ہو کہ کوئی بھی ہو، پترا ہے وہ. اچھے مکان کیا ہے؟ ایک پڑی مٹی ہے، ایک کھڑی مٹی ہے. باقی دونوں مٹی جو ہے وہ پڑی مٹی ہے اور یہ کھڑی مٹی ہے، ذرا اس پر کلر بدل کیا ہے، باقی ہے تو مٹی. تو دنیا کا جو پھیلی ہوئی شکلیں اور صورتوں میں ہمیں تو جو کامیابی نظر آ رہی ہے وہ کامیابی نہیں، وہ دھوکہ ہے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کو یہی بات سمجھائی تھی، جو دنیا میں بسنے والے انسان ہو، جہاں تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ کامیابی نہیں، وہ دھوکہ ہے کامیابی کا. کامیابی کے لیے تو اللہ نے اپنا مبارک دین دیا ہے. ابھی مقدر سے آدمی غریب ہے لیکن زندگی میں دین ہے تو اللہ اس کو راحت دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، عزت دیں گے، محبوبیت، مقبولیت، یہ سارا سب کچھ اللہ نے دین میں رکھا ہے. اور ایک دم آسان بات ہے، سیدھی سرل بات. یہ جوتا بنانے والا جوتا بنانے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ بتاتا ہے کہ بھائی سیدھے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں اور الٹے پیر کا جوتا الٹے پیر میں. اب کوئی نادان یوں کہے کہ صاحب میں نے 1000 روپیہ خرچہ کیا، آپ کون ہوتے مشورہ دینے والے، اور وہ جوتے اپنی مرضی سے استعمال کریں، سیدھے پیر کا جوتا الٹے پیر میں اور الٹے پیر کا جوتا سیدھے پیر میں. یہ پہن تو سکتا ہے لیکن یہ پہننا اس کو راحت نہیں پہنچائے گا. چلے گا تو تھکے گا، دوڑے گا تو گرے گا، عزت بھی نہیں ملے گی. دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے پاگل آدمی. کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو؟ ایک جوتے بنانے والے کی بات نہ مانے اور وہ جوتے اپنی مرضی سے استعمال کریں تو وہ جوتے نہ راحت پہنچاتے ہیں، نہ چین پہنچاتے ہیں، نہ سکون دلاتے ہیں، نہ عزت دلاتے ہیں. تو جس اللہ نے آنکھ بنائی، جس اللہ نے ہاتھ بنایا، جس اللہ نے پیر بنایا، جس اللہ نے پوری باڈی بنائی، پھر بنانے کے بعد اس کا استعمال کا طریقہ بتایا. یہ دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ بولو، یہ مت بولو، یہ کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ پیو، یہ مت پیو، ادھر چلو، ادھر مت چلو. اس کا نام دین ہے، اس کا نام سنت شریعت ہے. آنکھ میری ہے، میں جو چاہے دیکھوں، دیکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ دیکھنا راحت ہی پہنچائے گا. زبان میری ہے، میں جو چاہے بولوں، بول سکتے ہیں لیکن یہ بولنا راحت ہی پہنچائے گا. ہاتھ پیر میرے ہیں، میں جہاں چاہے استعمال کروں، کر سکتے ہیں لیکن یہ استعمال راحت نہیں ملائے گا. بنانے والے نے اس کا استعمال کا طریقہ بتایا ہے. اس وقت میں دنیا میں مسلمانوں کی پریشانی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دین نہ ہونا ہے. مال کی کمی، اسباب کی کمی، چیزوں کی کمی، سامان کی کمی، یہ سب خیالی پلاؤ ہے. یہ تو ایسی نادان سوچ ہے. ایک شیر کو بکری نے سینگ مارے، ایک شیر کو بکری نے سینگ مارے تو شیر بکری سے کہنے لگا میرے پاس بھی سینگ ہوتے تو میں تجھے مارتا. سمجھ رہے، سو رہے ہیں. مسلمان بھی کہتا ہے میرے پاس یوں ہوتا، یوں کرتا، یوں ہوتا نا. تو شیر ہے، تو کہاں سینگ کے چکر میں؟ کوئی تعلق نہیں. ہم لوگ صومالیہ گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک پروفیسر بھی دلی IIT میں M.Tech کیا ہوا، 4 مرتبہ 4 مہینے لگائے وداؤٹ پے اسے. خیر، تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں سے پھر کہا ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت آ جائے گی تو راحت آ جائے گی، یا مسلم حکومت. ہم نے 1500 کلومیٹر کا سفر کیا.
کوئی گاؤں کی، کوئی محلے کی، کوئی مکان کی دیوار ہم نے ایسی نہیں دیکھی ایک بالی جگہ جان مجھے کیوں نکالنا ہے۔ 18 سال تک لڑتے رہے۔ اچھا، دونوں مسلمان، دو قبیلے کے جھگڑے، مثال کے طور پر ملک پٹھان، میں مثال دے رہا ہوں، دو قبیلے لڑ رہے ہیں اور 18 سال تک ہزاروں عورتیں شہید ہو گئی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئی، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، دو قبیلوں کے جھگڑوں۔ کیا ہے؟ حکومت ہے، دین نہیں۔ اچھا، اتنا بڑا مسئلہ جو اللہ نے حل کیا، سبحان تیری قدرت۔ پاکستان کے مولانا جمشید صاحب شاید ابھی ہے، رائیونگ میں مقیم ہے، یہ انتقال ہو گیا شاید، بہت زبردست عالم ہے ہمارے یہاں کی، سمجھو مولانا محمد عمر صاحب ایسے وہاں، وہ وہاں جماعت دے کر گئے اور انہوں نے 1.5 سال لگایا وہاں، کتنا پیدل چلے 1.5 سال۔ یہ 18 سال کا آپس کا توڑ حضرت مولانا جمشید صاحب کے چلنے کی برکت سے اللہ نے وہ توڑ سے بچا، امن آیا، سکون آیا۔ پھر تو مولانا جب دوسری مرتبہ گئے وہاں صومالیہ، تو وہاں کی حکومت نے شاہی توپ پھوڑ کر مولانا کا استقبال کیا کہ اس آدمی کی برکت سے ہمارے ملک میں امن آیا۔ یہ جو محنت ہے نا، عجیب ہے۔ خیر، تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ سب ہماری خیالی پلاؤ ہے، راحت آ جائے، مال آ جائے گا تو راحت آ جائے گی، چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ حدیث میں تو یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، غریب کی پریشانی غریب اور مالدار کی پریشانی مالدار۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ پریشانی بھی کیسی ہوگی؟ مالدار، اور غریب کی پریشانی کیسی ہوگی؟ وہ پریشانی بھی غریب۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ غریب کو 1500 دو تو خوش ہو جائے گا، مالدار کو 1500 دو تو وہ کہے گا کہ یہاں سے فاؤنٹن میں جا کر آؤں گا تو ایک وقت کا کھانا بھی میرا پورا نہیں ہوگا۔ تو غریب کی پریشانی غریب اور مالدار کی پریشانی بھی مالدار، پریشانی بھی مالدار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے راحت، چین، سکون، کامیابی کے لیے اپنا مبارک دین دیا ہے۔ یہ مبارک دین جس کی بھی زندگی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو راحت، چین، سکون، کامیابی، محبت، برکت، یہ سارا سب کچھ اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ اور دین نہیں ہے آدمی کے پاس کتنے بھی اسباب آ جائے، راحت کے، چین کے، سکون کے، لیکن دین نہیں ہے تو راحت کے اسباب سے راحت نہیں آئے گی۔ اے سی لگانے سے چمڑی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اور دین بہت آسان، سائیکل چلانے سے آسان دین پر چلنا ہے۔ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پہ چل سکتا ہے۔ دین اتنا آسان ہے، لیکن چونکہ محنت نہیں ہے اور رواج میں نہیں ہے تو یہ آسان دین مشکل بنا ہوا ہے۔ بہت آسان ہے دین، کھاتے کھاتے، سوتے سوتے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے، لیکن دین کی محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے زندگیوں سے دین نکل گیا، اور دین نکل جانے کی وجہ سے سارے حالات ہیں، سارے مسائل ہیں، سارے پرابلم ہیں۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے۔ اور اس محنت کے ذریعے سے یہی کہا جاتا ہے کہ زندگیوں میں دین آوے، اور دین آئے گا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جہاں گھروں میں دین آیا، مسئلے حل، بیوی فرما بردار ہو جائے گی، بچے فرما بردار ہو جائے گا، بھائیوں میں محبت آ جائے گی، چیزوں میں برکت آ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبوبیت ڈال دیں گے۔ یہ سارا سب کچھ اللہ نے دل میں رکھا ہے۔ گھر میں صرف دین ہو تو یہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ آج گھر میں دین نہیں ہے، بیچارہ یہ صبح سے تھک کر رات کو گھر پہ جاتا ہے۔ تو چونکہ بیوی دیندار نہیں ہے تو کھانا تو لگاتی ہے، لیکن کھانا لگا کر سامنے بیٹھ کر
कहना शुरू कर दिए, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, तुम्हारे बड़े वाले ने ऐसा किया, छोटे वाले ने ऐसा किया। ये बेचारा सुबह से गया है, रात को थक कर घर पहुंचा है। इसके दिल में जरा भी रहम नहीं है कि मेरा शौहर सुबह से गया है, रात को आया है, थक कर। वजह क्या है? दीन नहीं है। यही खातून दीनदार होती है। तो दीन ने औरतों से कहा कि शौहर को दिखाने के लिए अपने आप को बनाना, संवारना, आपकी नियत ये हो कि मेरा शौहर मुझे देख के खुश हो जाए। तो आपका जो बनने संवरने में वक्त लगेगा वो सब इबादत है। लेकिन उस खातून की नियत ये हो कि मेरा शौहर मुझे देखकर खुश हो जाए। ये कब होगा? जब खातून दीनदार हो। अगर वो दीनदार नहीं है तो घर में मैली कुचैली रहेगी और आप कहोगे बाजार जाना है तो वो कहेंगे आधा घंटा दो मुझे। क्यों? मैं तैयार हो जाऊं। किसको दिखाने के लिए? किसको दिखाना है? अब दीन नहीं है तो बेचारा परेशान है। वरना यही खातून अगर दीनदार होती तो अपने बच्चों को लेकर बैठती, शहर बनाती, अबू सुबह से गए, शाम को थक कर आएंगे, अपनी शिकायतें अबू के सामने नहीं करेंगे। हमारी जरूरत पूरी करने वाले अबू नहीं है, हमारी जरूरत पूरी करने वाला अल्लाह है। शिकवा शिकायत नहीं करनी है। सुबह से गए हैं, थक कर आ रहे हैं, कौन कहेगी? दीनदार खातून दीनदार है तो ये कहेगी, और दीनदार नहीं है तो अधूरा है। ये बेचारा चैन से खा भी नहीं सकता और चैन से सो भी नहीं सकता। चैन। और वजह क्या है? घर में दीन नहीं है। और हम खुद सोचे, हमने घर में फ्रिज लाने की फिक्र की, फ्रिज आ गया, सोफा सेट लाने की फिक्र की, सोफा सेट आ गया, घरघंटी लाने की फिक्र की, घरघंटी आ गई। क्या नहीं आया? वो चीज भी आ गई जो मुसलमान को ले आनी चाहिए। जब बसाने की चीज को घर में नहीं बसाया तो न बसने की चीज घर में बस गई। अब इस घर में रहमत के फरिश्ते कहां से आएंगे? नाच गान हो रहा है, हिजड़े गा रहे हैं, रंडियां नाच रही, म्यूजिक बज रहा है। कि बसाने की चीज को नहीं बसाया तो न बसने की चीज बस गई। घर में बसाना था दीन। हम सब सोचे, हमने अपने घर में दीन लाने के लिए क्या फिक्र? हमारे घरों में दीन के मुजाकरे हैं, तस्करे हैं, जिसके लिए अल्लाह वाले कहते हैं भाई घर में 10 मिनट तारीफ तो करो। दुनिया भर के मुजाकरे घरों में हो रहा है। उसने ऐसा मकान बनाया, उसने ऐसा पीओपी करवाया, उसने ऐसी दुकान ली, ऐसी जमीन ली, उसने ऐसे अपने बच्ची की मंगनी में इतना खर्चा किया, ऐसे जवेरात बनाए, ऐसे कपड़े बनाए। इसी के तस्करे, इसी के मुजाकरे। फना होने वाली दुनिया, उसी के तस्करे घर में है। इसके तस्करे। एक बाप भी अपने बेटे से कहता है बेटा अच्छी पढ़ाई करो तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे ना तो ऑटो चलानी पड़ेगी, केले की लारी निकालनी पड़ेगी। ये बाप कभी ही नहीं कहता कि बेटा एक नमाज कजा हो गई। खबर ऐसे सच्चे नबी की है जिन्होंने मजाक में भी झूठी बात नहीं कही। वो अंजाम के एतबार से ऐसा है, माल दौलत धन सब कुछ लिया, अकेला खड़ा रहेगा। एक नमाज का छूटना। घरों में इसके तस्करे हैं, इसके मुजाकरे हैं। सबको बसाया घर में, दीन को नहीं बसाया। तो परेशानियां हैं। और ये सोचने का भी वक्त नहीं है कि मैं क्यों परेशान हूं। ये सोचने का वक्त भी नहीं है तुम क्यों परेशान है। ये तो बस वही सोचता है कि मेरे पास ये नहीं, इससे परेशान हूं, वो नहीं, इससे परेशान हूं, ये आ जाए तो राहत आ जाए। वह है ही नहीं। जैसे वो रेगिस्तान में पानी है ही नहीं, वो तो पानी का धोखा है, वो चमकता हुआ रेत है। तो जहां हमको राहत चैन सुकून कामयाबी नजर आती है वो कामयाबी नहीं है, वो कामयाबी का धोखा है। कामयाबी के लिए तो अल्लाह ने अपना दीन दिया है। और
اور یہ دین ہے تو پھر حیاتن طیبہ، اللہ خوشگوار زندگی دے گا۔ تو ایسی نعمت ہے، اس کو پوچھو جس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ یہ بغیر دودھ کی کھائے تازہ اور موٹا ہوتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ مکان اگرچہ کرایہ کا ہے اور مکان کی چھت اوپر کی اگرچہ ٹین کے پتھروں کی ہے، لیکن بیوی دیندار ہے، اولاد دیندار ہے۔ بیوی سے ہنستے چہرے استقبال کرے نا تو پورے دن کی تھکان اتر جائے۔ کتنی دیر لگا دی، آ جاؤ ہم ساتھ میں گرم گرم کھانا کھا لیں، چاہے وہ چھٹی روٹی ہے مقدر سے، لیکن استقبال کر رہی ہے۔ اور 700 روپے کلو والے بکرا کا گوشت ہو، 700 روپے کلو، اور بھالیا گھؤں کے چوکھے گھی کے پراٹھے ہو، اور کھانا لگا کے سامنے کیا لو کھینچی لو، آئے گا کھانا کبھی؟ دیر کھائی لے کھا تو تھا اتنی جلدی، اے سی میں پسینہ ہوگا؟ یہ ہو رہا ہے آج۔ یہ تو ہم تبلیغ میں لگ گئے تو ہم کو یہ سب الا بلا سے پتہ نہیں ہے، یہ سب بہت پریشان ہے۔ یہ جو راحت میں دکھائی دے نا وہ راحت میں نہیں ہے، وہ تو آخری درجے کی پریشانیوں میں ہے۔ وہ جو میرا دوست ہے پروفیسر، وہ یوں کہہ رہا ہم سب پروفیسر سب جمع ہو کے بات کریں نا تو وہ یوں پوچھے صاحب تم نے گھرے جاؤ تو کوئی پالو پانی پائے؟ ہاں میرے 3 بچے ہیں، تینوں کھڑے ہو جائے لو، میری بیوی بھی، اور میں تو پان کھاتا ہوں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو آخری پان بھی میری بیوی میرے ہاتھ سے بنا کے منہ میں ڈالتی رہتی ہے۔ تو حیران ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کو تو ایسا لگ رہا ہے یہ سب باتیں کہ جیسے کسی کو مئی جون کی گرمی میں دسمبر کی سردی سمجھانا کتنا مشکل ہے۔ مئی جون کی گرمی میں اگر کسی کو دسمبر کی سردی سمجھانی ہو تو اتنا ہی مشکل ہے۔ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ اللہ کا شکر ہے، گھر میں دین ہے، بچے دیندار ہیں، استقبال کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے، اف تک نہیں کریں گے اولاد اگر دیندار ہے تو اف، کیونکہ دین نے رہبری کی ہے کہ تیرے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دین نے اسے کہا، اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ایک پہنچے یا دونوں، اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوان کو بھاری لگتی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تو لگے گی، بڑھاپے کی بعض باتیں جوان کو بھاری لگتی ہے، اگر ان کی کوئی بات تجھے بھاری لگے تو اف، یہ کتاب ملے گا، اف اپنی زبان یہ حرام ہے، بولنا تو بہت دور کی بات، اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے اپنے باپ کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، ساتھ ایک بڑے میاں تھے، اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے؟ بڑے میرے والد ہیں۔ تو میں ان کے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، کسی کام میں پہل مت کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرنا۔ اچھا، والدین کو ستانا اور والدین کا بددعائیں لینا، یہ والدین کی نافرمانی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا، اس کی وبال آخرت میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو اس کی پکڑ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہی کتاب میں پڑھا ہماری تعلیم میں، دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ، بہت جلدی پکڑ دیں، بلکہ حدیث ہے، عجیب حدیث ہے وہ، جس کا مفہوم ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی، تم لوگوں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں لوگوں سے عفیف رہے گی۔ جیسا ویوہار ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی ویوہار ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ ایک باپ کو 3 بیٹے مارتے مارتے گاؤں کے باہر لے گئے، مار کھانے والا باپ کہہ رہا ہے بس کرو بس، میں بھی اپنے ابا کو مارتے مارتے یہاں تک لایا تھا۔ تو ہم کو تو ہمارے نبی نے رہبری کی ہے، دین نے ہر چیز کی رہبری کی ہے، صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک قدم قدم پر دین نے ہماری رہبری کی ہے، اور اس دین میں سراسر حفاظت ہے،
सरासर अमन, सुकून, इज्जत, मोहब्बत, बरकत, ये सारा सब कुछ अल्लाह ने दीन में रखा है। लेकिन वो दीन या तो किताबों में है या तो कब्रों में है, जिंदगियों में है नहीं। इससे परेशानियां हैं और उसके लिए निकालने को कहा जाता है भाई निकलो निकलो, तो टाइम नहीं हमारे पास, तो खाओ गोदे। तो फिर यही होगा, तो जब दीन नहीं आएगा मसले हल नहीं होंगे। दीन आया मसले हल, अमन, सुकून, मोहब्बत, बरकत, चाहे मुकद्दर के हालात होंगे। मुकद्दर इंसान है, हम फरिश्ते तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है दीनदार बन जाएंगे तो मुकद्दर के हालात नहीं आएंगे, तो मुकद्दर के हालात आएंगे, लेकिन सुकून होगा। जैसे हदीस में आता है जिसका मफहूम है, जिस शख्स को 4 चीजें मिल गई उसको दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई। जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, अल्लाह के रास्ते में मशक्कत उठाने वाला बदन और नेक बीवी। कुर्बान जाए हमारे नबी पर, एक बात हमारे नबी ने नहीं कही अच्छा मकान या दुनिया आखिरत की कामयाबी की बात है, दुनिया आखिरत की भलाई, अच्छा मकान, अच्छा लिबास, अच्छी सवारी, अच्छा दस्तरखान, एक बात अल्लाह के नबी ने नहीं कही। जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, ओहो, ये दिल ही अगर मिल जावे ना शुक्र करने वाला, क्या मजे की जिंदगी है यार। लेकिन ये बोलना आसान है। हदीस में जो थोड़ी रोजी पे राजी हो जाएगा अल्लाह उसके थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। जो थोड़ी रोजी पे राजी हो जाएगा अल्लाह उसके थोड़े अमल पे राजी हो जाएंगे। एक बुजुर्ग ने मछली पकड़ी, पकाई और खाई और सो गए। मेरे जैसा दुनिया परस्त आया, उसने उस बुजुर्ग से कहा अरे मछली पकड़ो, तो फिर बेचो, फिर जाल लाओ, फिर और मछली पकड़ो, फिर उसको बेचो, कश्ती लाओ, कश्ती और मछलियां पकड़ो, फिर बेचो, फिर पैसे कमाओ, फिर आराम करो। तो कभी क्या कर रहा हूं, इतना सब करके तो आराम का कह रहा है। ये बोलना आसान है, ऐसा दिल भी तो चाहिए, ऐसा दिल भी तो चाहिए। इसलिए कहा अल्लाह ने शुक्र करने वाला दिल बहुत बड़ी नेमत है। दिल शुक्र करा, बस अल्लाह के फैसले पर राजी है, जो मिला हो। मिली तो रोजी वरना रोजा। आप तो दुनिया का कोई नुकसान हुआ हो ना बाहर, तो बीवी की खैरियत बिगड़ जावे, अब्बा की खैरियत बिगड़ जावे, माँ की खैरियत बिगड़ जावे और घर में कर्फ्यू हो जावे। क्या हुआ है, कुछ हुआ है, चेहरा ही बता रहा है ना। क्या कसूर बेचारी माँ का, अब्बा का, बीवी का, बच्चों का, इनका क्या कसूर है, लेकिन नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। अल्लाह के फैसले पर राजी रहने का। मिली तो रोजी वरना रोजा। हमको रहना कितना है यहाँ, कितना रहना है, 30-40 पता। बिल फर्ज अगर हम पूरे धर्मपुर के मालिक भी हो गए तो खाएंगे कितना है मुझसे, 25 रोटी। पहनेंगे कितना, एक ही जोड़ कपड़ा। कैसा है कि बड़ी पार्टी है तो चलो 2-4-5 जोड़ी कपड़े पहन के निकले, और बड़ी पार्टी है तो जरा ज्यादा खावे तो ये लोग कहे देखो तो हरकत तो नहीं है ना। तो अच्छे मौलवी साहब को बताओ इतना सारा क्यों खा रहे हैं। तो ये सब ख्याली पुलाव, यहां आदमी धोखा खाता है। राहत चैन सुकून कामयाबी के लिए अल्लाह ने अपना मुबारक दिया। अब वो दिन है तो बस अमन है, बीवी का दिन है, बीवी जिंदा है, बच्चे जिंदा है, मौमिन बनेंगे आप। नेक बीवी की अलामत क्या है कि दीन के कामों में वो मौमिन बने, मददगार बने, शिकवा शिकायत ना करें। उलमा ने लिखा है माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जन्नत की औरतों की सरदार की जो फजीलत मिली वो इस वजह से नहीं कि वो हुजूर की बेटी है। अगर ये बात होती तो हुजूर को 4 बेटियां थी,
चारों को ये फजीलत मिलनी चाहिए। लेकिन उलमा यूं कहते हैं ये फजीलत इसलिए मिली कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अल्लाह के दीन की मेहनत के तकाजे पे चलते थे, तो घर में फाके आते थे। वरना जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो, खैबर का दरवाजा अकेले उठाकर फेंक दे, और खैबर का दरवाजा इतना वजनी था कि उस जमाने के 300 आदमी मिलकर उठा सके। अकेले हजरत अली ने उठाया है रजी अल्लाह तआला और उसको फेंका है। मेरे दोस्तों, जिनके बाजू में इतनी ताकत है और घर का यह हाल है कि 2 बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। क्या वो अहदी थे? नाउजुबिल्लाह, कमाना नहीं जानते थे, बच्चों के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक मालूम नहीं थे। नहीं, अल्लाह के दिन की मेहनत के तकाजे इतने थे कि 2 बच्चों के काबिल भी कमाने का टाइम नहीं मिलता। हुजूर पूछ रहे हैं मेरे जिगर के टुकड़े क्यों रो रहे हैं? भूख की वजह से रो रहे हैं। आपने पहले इमाम हुसैन के लिया, अपनी जबान दी, उन्होंने चूसा, वो खामोश हो गए। फिर हजरत हसन को लिया, फिर अपनी जबान दी, फिर वो चूसी, वो खामोश हो गए। बहुत हालात आए, उन हालात पर कभी भी शिकायत नहीं की हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा ने रजी अल्लाह तआला ने। बल्कि हजरत अली कह भी रहे हैं कि जाइए अब्बा के पास, नहीं कह सकते। तो खुद हुजूर तशरीफ लाए कि बेटा तो आई थी, क्या है? तो हालात बताए। तो अल्लाह के नबी ने भी ये नहीं कि वो जो मसला रखा है मेरी जिगर का टुकड़ा है फातिमा, तो जो मांग रही दे देना, फौरन कहा अरे बेटी जब सोने के लिए लेटा करो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये खादिम से बेहतर है। अमल बताए, ये सबक दिया है दुनिया को कि मसलों का हल माल नहीं है। अब तो लोग पैर दबाने की मशीन, सर में लगाने की मशीन, कमर मसाज की मशीन, क्या क्या मशीनें ला रहे हैं। खैर, तो अल्लाह के नबी ने ये तालीम दी है, मसलों का हल तो यही है। 33 मरतबा सुभान अल्लाह करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर करो, फिर दम करो पूरे जिस्म पर। तो उलमा यूं कहते हैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये जो जन्नत की औरतों की सरदार की फजीलत मिली वो इस वजह से कि घर में हजरत अली के राह खुदा में निकलने पर घर में हालात आए, तो उन हालात पर आपने शिकवा शिकायत नहीं की, किसी को नहीं कहा, अब्बा को भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था जब घरों में दीन होता है तो अमन होता है, चैन होता है, सुकून होता है। मुकद्दर के हालात होंगे, ये नहीं कोई दीनदार बन गए तो मुकद्दर के हालात नहीं है। मुकद्दर तो हर एक का लिख किया है, मुकद्दर के हालात ही आएंगे। लेकिन दीन है तो हालात में भी अमन। दीन अजीब चीज है। एक आदमी ने जमीन खरीदी, एक ने बेची, खरीदने वाला भी दीनदार, बेचने वाला भी दीनदार। खरीदने वाले ने खरीदी, खरीद कर खोदा तो खजाना निकला। और ऐसा नहीं तोला 10 तोला, अब तो तोलों का जमाना है, वो तो बरकत का जमाना था। किलो के हिसाब से सोना चांदी और जवेरात, आज की करोड़ों की मिलकर। अब दीन रहबरी कर रहा है किसकी? जिसने खोदा उसने। कोई अपने ने तो जमीन खरीदी है, खजाना अपना नहीं है। ये खजाना लेकर सीधा जिसके पास जमीन ली है उसके पास, कोई मैंने आपसे जमीन ली थी, मैंने इसको खोदा तो उसमें से निकला है, मैंने जमीन खरीदी है, खजाना आपका है, आपने। अब उसका दीन इसको कह रहा है मैंने बेच दी, जो कुछ है वो आपका। आवे आप समझ में ये वाक्या इस लूट खसोट के माहौल में कैसा मीठा झगड़ा है। झगड़ा है लेकिन कितना मीठा है, सुनने में इतना मजा आता है, तो कैसा लगता होगा उसको। उसका दीन कह रहा है मैंने तो बेच दिया, जो कुछ भी आपका है, और मैंने तो जमीन खरीदी है, लेकिन मैंने तो उसी वक्त नियत की थी कि जो कुछ भी आपका ले लो। अब ये कह रहा है मैं नहीं लूंगा, वो कह रहा है मैं नहीं लूंगा। दीन होता है ना तो झगड़े भी मीठे है, झगड़ा लेकिन मीठा। तो मामला गया कोर्ट में, तो जज थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दोनों की बात सुनी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक को पूछा जिसकी जमीन थी उसकी, आपके पास औलाद है? बोले है। बोले क्या है? बोले अल्लाह का दिया हुआ बेटा है।
दूसरे को पूछा भाई आपके पास औलाद बोले है क्या है? बोले अल्लाह की दी बेटी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन दोनों का निकाह कर दिया और वो संदूक उनको दे दिया। हयातन तय्यबा। ये तो बरकत, दीन तो बरकत लाता है। तो था झगड़ा लेकिन बरकत हो गई। तो ये खुशगवार जिंदगी है दिन भर, अमन, सुकून, मोहब्बत, बरकत, बीवी दीनदार, औलाद दीनदार। सिर्फ जूते ही सीधा कर दे। औलाद अगर दीनदार होती है तो वो अमल बहुत छोटा है कि मेरे अब्बा है और मुझे दीन ने कहा है कि अब्बा का अदब करो, तो जूते सीधे कर दिए। वो तो ऐसा अमल है कि वो बगैर दूध की खैर ताजा और मोटा होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कितनी अच्छी औलाद दी। तो फख्र करता है। बीवी दीनदार हो, ओहो, दौरे सहाबा में 100% दीन था तो अमन था। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला सफर में है और रोजा रखा है, और रोजा भी नफल। और जब सफर में गए तो बच्चा बीमार था। उस बच्चे के मुकद्दर में मौत थी, बच्चे का इंतकाल हो गया। अब दीन रहबरी कर रहा है इस खातून की। शौहर ने रोजा रखा है, बच्चे की इंतकाल की खबर सुनेंगे तो इफ्तार मुश्किल हो जाएगा। तो इस खातून ने अपने बच्चे को गुस्ल दिया और कफन पहनाया और मैयत को घर में रख दिया। जब वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला आए, कितनी चीज है इंसान की बच्चों से मोहब्बत। सलाम के बाद पहला सवाल उस सहाबी ने ये किया अपनी बीवी से, बच्चे का क्या हाल है? उन्होंने कहा अब तो सुकून है, कोई सो गया है, इफ्तार हो गया। इफ्तार के बाद भी कहना मुनासिब नहीं समझा, नहीं कहा कि रात का सोना मुश्किल हो जाएगा। तो सो अच्छा, इतना अपने आप को बनाया सवारा उस खातून ने कि शोहर को शक भी न जाए घर में कोई हाल आया है। क्या मजे की जिंदगी है दीन की यार, क्या मजे की जिंदगी है। और चूंकि सहाबा की जिंदगी कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना है, तो उनकी हर बात लिखी कि शोहर को शक न जावे कि घर में इतना बड़ा हाल आया है। तो अपने आप को बनाया सवारा ताकि शोहर को शक भी न जावे। उस रात मियां बीवी के तन्हाई के ताल्लुकात पूरे हुए। मेरे लिए बोलना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है। उस खातून के कल पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा है, और मौत और जिंदगी के बीच में एक बाल का फर्क होता है। वो दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे की मैयत घर में है, और दीन इसको खामोश किए हुए, दीन ने खामोश किया। उस रात तन्हाई के ताल्लुकात पूरे हो गए। और इतना बड़ा हाल सुनाने के लिए वो खातून ने जो अंदाज इख्तियार किया है, जब ये सुबह में फजर की नमाज के लिए जाने लगे तो वो खातून भी साथ हो गई दरवाजे तक, और फिर कहा ठहरो ठहरो, एक मसला पूछना है। क्या मसला है? मसला ये है कोई चीज को अमानत देवे कि लो ये अमानत है, फिर वो अमानत वापस मांगे, क्या किया जाए? वो अमानत वापस दे देनी चाहिए। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह की दी अमानत दी, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया है, मैंने इसको गुस्ल करके कफन पहना के रखा है, ले जाइए इसके जनाजे की नमाज पढ़ी और दफन की। पहाड़ जैसा हाल है, पहाड़ जैसा, लेकिन घर में दीन है तो अमन सुकून है। आज मेरे दोस्तों, हमारे घरों में सारा सब कुछ है, दीन न होने की वजह से हालात, परेशानियां, सास बहू के झगड़े, देरानी जेठानी के झगड़े, ननंद भाभी के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े। और वजह क्या है? वजह क्या है? दीन नहीं है। और ये सोच भी नहीं है उसकी कि मैं दीन नहीं है इससे परेशान हूं। उलमा ने लिखा है जिस रात मियाँ बीवी के तन्हाई के ताल्लुकात पूरे हुए और उस रात हमल रहा और उस दिन की फजर की नमाज कज़ा हुई या मियाँ की या बीवी की, तो उस रात जो औलाद वजूद में आएगी वो नाफरमान होगी। क्यों? जिस दिन इसका वजूद था उसी दिन अल्लाह का बहुत बड़ा हुक्म तोड़ा गया है। नमाज छोड़ना
कबीरा गुनाह नहीं है, नमाज छोड़ना अकबरुल कबाइर है, अकबरुल कबाइर, अकबरुल कबाइर। देखो फजर में कितने नमाज, फिर हम कहते हैं बहुत परेशान है, तो परेशान है जो फिर वजीफे पढ़ते हैं, ये वजीफा भी पढ़ता हूं, फजर पढ़ी तो फजर नहीं पढ़ी, बोलो फजर नहीं पढ़ी, वजीफे पढ़ रहे हैं, यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं, और कोई बुजुर्ग ने बताया था ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो। फिर लोग कहते हैं हमारे घर में हरकत है, तो हरकत है ने काम ही ऐसा किया है। जिस अल्लाह ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 किडनी दी, तंदुरुस्ती दी, उसी अल्लाह का हुक्म तोड़ना, तो कहां से राहत आएगी, कहां से चैन आएगा, कहां से सुकून आएगा घरों में। एक आंटी के घर में बहुत बदबू आती थी, तो उसने कहा मेरे घर में बहुत बदबू आती है, तो किसी ने मशवरा दिया अगरबत्ती जलाओ, उसने अगरबत्ती जलाई। अब जब तक अगरबत्ती जलती रही बदबू दबी रही, लेकिन जहां अगरबत्ती का जलना बंद, बदबू फिर शुरू। परेशान था वो, तो कह रहा क्या करूं यार, अगरबत्ती से तो मसला हल नहीं हुआ, तो किसी ने लोबन जलाओ, तो लोबन जलाया। अब जब तक लोबन जलता रहा वहां तक वो बदबू दबी रही, लोबन जलना बंद, फिर बदबू शुरू। अब परेशान, बहुत बदबू आ रही है। किसी ने स्प्रे का मशवरा दिया, किसी ने फिनाइन का, जो जिसको मशवरा दिया सब कर रहा है, जब तक वो उसका असर है वहां तक बाकी, फिर खत्म। समझदार आदमी से मशवरा लिया, समझदार आदमी से, तो समझदार आदमी ने समझदारी का मशवरा दिया, तेरे घर में मरे हुए कुत्ते और बिल्ले हैं, उसको पहले निकाल। घर में बेनमाजी का चूहा मरा पड़ा है, सूद का, झूठ का कारोबार में, मिलावट का, सब चूहे कुत्ते मरे पड़े हैं। इस घर में खुशबू आएगी, यासीन शरीफ पढ़ ली, अगरबत्ती जला दी, जब तक उसका असर रहेगा वहां तक रहेगा। ये वजीफा बताया, वो पढ़ लिया, नो डाउट अल्लाह का नाम है, तो वो तो दबू, वो पहले मरे हुए जो अंदर पड़े हैं उसको तो निकालना पड़ेगा। फिर नमाजी का चूहा मरा पड़ा है, सूद का, झूठ का, मिलावट का, बहनों का हक दबा कर बैठा है, ये सब चूहे हैं, ये सब मरे पड़े हैं घरों में, कहां से राहत आएगी। हाँ, आज दुनिया में शोर है, बहुत हालात है, हालात आए क्यों, ये कोई नहीं सोचता। अक्लमंदी ये है हालात क्यों आए वो सोचे। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक साथी ने खत लिखा, खत का हालात लिखे, ये हालात, ये हालात, ये हालात। मौलाना ने उसका जवाब में कहा, आप जो मदरसे की चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, पहले इसको बंद कीजिए। आपने जिस लेटर पेड पर मुझे खत लिखा है वो भी मदरसे का है। तो हालात आए क्यों, क्या हुआ का शोर है, क्यों हुआ वो कोई नहीं सोचता। अक्लमंदी ये है कि आदमी ये सोचे क्यों हुआ। एक बुजुर्ग को घोड़ा सताता था, घोड़ा जब सताता था तो वो इस्तिगफार करते थे, सतावे घोड़ा और करे इस्तिगफार। वो यूं कहे घोड़े की क्या ताकत है वो मुझे सतावे, मैंने कोई अल्लाह की नाफरमानी की है, उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने घोड़ा मेरे ऊपर मुसल्लत किया है। तो वो इस्तिगफार करते थे कि अल्लाह माफ कर दे। कुत्ते को अगर पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर को देखता है मारने वाले को। आप लोग तो कभी पत्थर नहीं मारा ऐसा लगता है, तो बोलो खरे है, वो भी समझता है कि पत्थर ने नहीं मारा, मारने वाला है। जिस पर जो हाल है ना वो अल्लाह का पत्थर है। कुत्ता तो समझता है कि पत्थर ने नहीं मारा, मारने वाला जो है तो वो उसको देखता है, लेकिन ये नादान इंसान पत्थर को देखता है। तो पत्थर देख के कहता है क्या तो कुछ कर ही ना, मिल भी जाते हैं इसको, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, और वो कुछ भी नहीं है। उसको ये नहीं पता कि मेरे अमाल की कमाई है। जिस पर जो हाल है वो अपनी अमाल की बदली हुई शक्ल है, जिस पर जो हाल है वो अपनी अमाल की बदली हुई शक्ल है। वो मिठाई की दुकान पर वो
सब शोकेस में रखा होता है, काजू कतरी और पेड़ा और बर्फी और ये और वो है क्या? वो असल है दूध, दूध की बदली हुई शक्ल। तो जिस पर जो हाल है, ये हाल क्या है? वो अपने आमाल की बदली हुई शक्ल। औलाद नाफरमान कब होती है? रोजियां तंग कब होती है? किताबों में लिखा है फजर बाद सोने से रोजी तंग हो जाती है, तन्हाई के गुनाह से रोजी तंग हो जाती है, बदनजरी करने से रोजी तंग, बदनजरी करने से पसीने में बदबू आती है। तो जो हाल है वो अपनी अमाल की बदली हुई शक्ल है। तो समझदार आदमी तो यही सोचेगा कि मैं परेशान क्यों हूं, ये सोचेगा। पहले जो हकीम और वही थे ना, वो नफ्स देखते थे और नफ्स देखकर इलाज करते थे, और यही सही तरीका है। बाकी एलोपैथिक डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे। ये कब से आया एलोपैथिक? तकरीबन 150 साल। दुनिया बने 5000 साल हो गए तकरीबन। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने को बाजुल में 5 साल, बाजुल में 5.5, बाजुल में 6000, ये 150 साल से आया है एलोपैथी। पहले तो वही तरीका था, नफ्स देखना और नफ्स देखकर इलाज करना। वो बिल्कुल सही तरीका है। आदमी है ऐसे कुछ माहिर, लेकिन क्योंकि अब सब डालडा हो गया, वो भी डालडा हो गया है। एक साथी को पेट में दर्द हुआ, तो गया हकीम साहब के पास। हकीम साहब ने नब्ज देखी। नब्ज देखकर हकीम साहब ने कंपाउंडर से कहा आंख में दवा डालो। तो मरीज ने डॉक्टर हकीम साहब से कहा हकीम साहब पेट में दर्द है और अब आंख में दवा डलवा दें, और चुप हो जाओ। कल रात को जो रोटी खाई थी वो जली हुई थी, वो चिपक गई है, इसे दर्द है। तो पता चला आंख से बराबर नहीं दिखता, तो पहले आंख का इलाज करूंगा, फिर पेट का इलाज करूंगा। अगर आंख का इलाज नहीं करूंगा तो बार बार जली हुई रोटी खाओगे, बार बार यहां आओगे। हंसने के लिए नहीं है। इस पर जो हाल है वो अपनी अमाल की बदली शक्ल है। क्यों हुआ? अब ये सोचिए मेरे ऊपर हाल क्यों आया। तन्हाई में बैठकर वो सोचे इसी के हालात है क्या? अमाल की बदली शक्ल। तो ये जो हमारी परेशानियां हैं, ये तो कोई परेशानियां नहीं। दुनिया तो सुख दुख में गुजर जाएगी। 30, 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी है। अच्छा, ये 50, 60, 70 साल उसके लिए हैं जो आज पैदा हुआ हो। अब तो हर कोई ये कह रहा है 50, 60, 70 साल की जिंदगी, 50, 60, 70 साल। लपड़ तेरे कितने हो गए वो तो बात कर। वो भी बगले बजा रहा है 50, 60, 70 साल की जिंदगी। आज जो पैदा हुआ उसके लिए है। तो ये शैतानिया हमको चकमा देता है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं मैं पानी का गिलास हाथ में लेता हूं तो मुझे यकीन नहीं है पहले गिलास मुंह पर पहुंचेगा, पहले मलेकुल मौत पहुंचेगा। तो मसला दुनिया का नहीं है भाइयों, ये तो सुख दुख में गुजर जाएगी। आज मट्टी पर है, कल मट्टी हम पर हो जाएगी। मनो मन मिट्टी के लिए जब जाएंगे, ये रुपया पैसा धन दौलत, हम मालदार नहीं हैं, हम धोखे में, हम चौकीदार हैं। ये जो वाड़ी है आज हम बैठे हैं कह रहे हैं मेरी है मेरी है। 100 साल पहले कोई और मेरी है मेरी है। 150 साल पहले कोई और मेरी है मेरी है। 200 साल पहले कोई और मेरी है, सब मेरी है कह के चले गए। वाड़ी वहीं के वहीं है। आज हम कह रहे हैं मेरी है, 50 साल के बाद हमारी औलाद कहेगी मेरी है, 150 साल 100 साल के बाद और कहेगा मेरी। वाड़ी याद रहेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका मफहूम है समझदार और अक्लमंद वो है, समझदार और अक्लमंद वो है जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। ये समझदार है, ये अक्लमंद है। हम दुनिया में आए थे आखिरत के लिए, हम आखिरत को भूल गए, कब्र को भूल गए, मौत के तस्करे घरों में नहीं रहे। हमको तो हुक्म दिया कि घर में इसके तस्करे करो। लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत का तस्करा कसरत से करो, ये हमारे नबी हमसे कह रहे हैं। आज तो हमको मौत के तस्करे हमारे नजदीक तो मकरू हो गए। मुझे पता नहीं था वहां में जमा दे के क्या अमरावती, तो वो लोग पता नहीं नीका में भी तबलीग वालों एक काम है जहां वहां बयान, तो वहां भी बयान रखम शादी थी
बोले 15-20 मिनट बात कर लो ना। मैंने मौत पर बात की, मुझे पता भी नहीं क्रिकेट, तो फिर खुशी के मौके पर मौत की बात करते हैं। मैं मुबल्लिग नहीं हूँ, आज तालीम में जो आया वही कह दिया। आज यही मजमून था शादी मौत का, उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सफात है। तो वो लोग कहने लगे यार आज के दिन तो कुछ अच्छी बात करनी थी, खुशी का मौका था। खैर कहने का मतलब हम तो मौत के तस्करे से डर रहे हैं, हालांकि वो यकीनी है। दुनिया में खुदा का इनकार करने वाले लोग आए हैं, मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं आया। मरना है, आज मट्टी पर है, कल मट्टी हम पर हो जाएगी, मन मिट्टी के लिए दब जाएंगे, ये रुपया पैसा धन दौलत सब छूट जाएगा। और जिनका पेट भरने के लिए हम ये सारा सब कुछ कर रहे हैं, ये 2 दिन रोक के भूल जाएंगे। हजरत शेख ने लिखा है, और हजरत शेख ने तो अजीब बात कही कि मुफ्त के 2 आंसू बहा के भूल जाएंगे। तो हजरत शेख का कहने का मतलब ये है शायद ये रोने के पैसे होते तो रोते भी नहीं। हजरत शेख ने लिखा है कि मुफ्त के 2 आंसू बहा के 2 दिन में भूल जाएंगे। तो शायद रोने के पैसे होते ना तो शायद न रोते, मारवा। तो दुनिया धोखा है। अच्छा ये जो रो रहे हैं ये भी हमारे लिए नहीं रोएंगे। अब देखो लोग मैयत पे रोते हैं, इनसे पूछो क्यों रोते हो, बीवी से पूछो क्यों रोती है, मैं बेवा हो गई मेरा क्या होगा, बच्चों से पूछो तुम क्यों, अबू चले गए हम यतीम हो गए हमारा क्या होगा, माँ बाप से पूछो आप क्यों, जवान बेटा चला गया हमारा क्या होगा, बहन से पूछो भाई चला गया हमारा क्या होगा। हर एक का रोना ये है हमारा हमारा हमारा। सच बताओ दोस्तों, कोई खातून इससे रोती है हाय मेरे शोहर का कब्र में क्या होगा। कोई बच्चे इससे रोते हैं हाय मेरे अब्बू का कब्र में क्या होगा। कोई माँ बाप इससे रोते हैं हाय मेरे बेटे का कब्र में क्या होगा। कोई बहन इससे रोती मेरे भाई का कब्र में क्या होगा। हालांकि इस बेचारे ने इनकी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत उजाड़ दी, दुनिया इनकी बनाई, आखिरत अपनी उजाड़ी, लेकिन ये अभी मरकर अभी दफन भी नहीं हुआ और इनका रोना अगराज वाला है। दुनिया है ही ऐसी, धोखेबाज है। इसको धोखेबाज, इसको जादूगर कहा। और जितनी बुराई अल्लाह ने दुनिया की बयान की है शायद इतनी बुराई किसी चीज की नहीं। कहीं तो मरे हुए बकरी के बच्चे से मिसाल के समझाया, अजीब अजीब मिसालों से समझाया और अजीब, ताकि लोगों को, लोग आज जो है तमाम गुनाहों की जो जड़ है वो दुनिया की मोहब्बत है। तमाम गुनाहों की जड़ आप देखो, भाइयों के झगड़े, पार्टनरों के झगड़े और जो भी है, दुनिया की मोहब्बत के साथ कुछ नहीं होगा। इसको आप नीचे जाओगे तो यही मिलेगा, दुनिया की मोहब्बत। ये तमाम गुनाहों की जड़ है, इसको आप कोई गुनाह नहीं समझ रहा। इसलिए हमारी शरीयत में जितनी बुराई दुनिया की बयान की है शायद इतनी बुराई किसी चीज की बयान नहीं की है। कुरान में अल्लाह ने मता कहा, मता, अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफस्सिरीन को। एक मुफस्सिरीन ने बाकायदा सफर किया कि सही बात लोगों तक पहुंचे कि मता का सही तर्जुमा क्या है। तो अरब के देहातों में सफर किया तो एक मुफस्सिर ने तो अजीब तफसीर बयान की, औरतें जो किचन रूम में कपड़ा इस्तेमाल करती है ना, हमारे यहाँ खेड़ा जिले में इसको महोता कहते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, वो लोग करे यार, वो जो किचन रूम में कपड़ा इस्तेमाल होता है मसोदा, वही बोलते हैं ना। आप समझे कि नहीं, आपको समझाना है, मुझे जो बोलते वो समझ में आया कि नहीं। तो एक मुफस्सिरीन ने दुनिया का मसोदा, और एक मुफस्सिरीन ने तो ऐसी तफसीर बयान की कि तो मस्जिद नहीं है कि उसको नकल करने में भी शर्म आ रही, ऐसी तफसीर। एक कपड़ा सुखाया हुआ था, एक कुत्ता आया, वो कुत्ता उस कपड़े को चमड़ा समझ रहा था और उसको लेकर भागा। जब भागा तो बच्ची ने अम्मी को कहा, अम्मी मता। तहकीक करने पर पता चला वो कपड़ा वो था जो औरतें डेट के जमाने पर वो इस्तेमाल करती है। ये है दुनिया जिसके लिए भाई भाई का खून करता है। इस दुनिया के लिए आदमी नमाज छोड़ता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, लोन लेता है, सूद लेता है, माँ बाप से झगड़ता है। ये दुनिया जिसकी हैसियत ये है। तो ये धोखा कब खुलेगा? अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, सही वक्त गुजारेगा, तो फिर दुनिया का बेकीमत होना और बेहैसियत होना पता चलेगा। इससे कहते निकलो, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है। घर, कारोबार, बीवी बच्चे, पुराना मसले नहीं, अपने हाल पर रहम खाकर, अपने हाल पर
आदमी को निकलना चाहिए, मुझे जरूरत है, कल मैं चला जाऊंगा, मेरा क्या होगा। और अभी जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो ये दुनिया का धोखा खुलता है। एक नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, लाखों वाकयात हैं कि पत्थर जैसे लोग हीरे जैसे बन गए, कांटे जैसे जवान फूल जैसे बन गए, अल्लाह के रास्ते में निकले, अपना वक्त सही गुजारा, आकर माफी मांगने वाले बने, वालिदैन की, लोगों ने आकर हुकूक अदा किए, लोगों ने 10-10 साल 15-15 साल की जकातें निकाली, लोगों ने जो है 15 साल 20-20 साल की कज़ा उम्री नमाजें पढ़ी। तो मैं तो गफलत में था, मेरी जिंदगी गुजर गई, मेरा क्या होगा आखिरत में। तो अल्लाह के रास्ते में निकले, एहसास हुआ, माशाअल्लाह लोगों ने कज़ा उम्री नमाजें पढ़ी, 10-10 साल की 15-15 साल की जकात हिसाब करके निकाली। कहीं किसी का हक दबाया था, जाकर उनको पैसे देने को कहा। कौन कहते थे, एक दर्जी रो रहा था, तो क्यों रोते हो, बोली इब्राहिम साहब ने कहा, मैं दर्जी हूं, लोगों के कपड़े बहुत चुराए, ये जो पहना है ये भी हराम का है। क्या हुआ, 4 महीने लगे, गुना चुभ रहे, ईमान बना तो गुना चुभेंगे। तो मौलाना अपने पास ले गए इब्राहिम साहब और अपने कपड़े दिए कि पहले उतार दो। उसे कहा ये भी हराम क्या है, तो मान के पहले ये उतारो, अपने दिए और तौबा करो, लेकिन मेरा क्या होगा आगे। तो मौलाना कहे बहुत आसान है, क्या सबके नाम लिखे हैं तो कहे सबसे कहोगे पैसे ले लो या माफी करो, बहुत कुछ हो गया, तो बहुत आसान हो गया। घर गया, मौलाना कहते मैं तो भूल गया ये बात। एक मुद्दत के बाद एक आदमी आया शेरवानी पहनकर और मेरे पास आकर कहा, मौलाना मुझे पहचाना। वहां कहते यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, कहा मैं पहचाना, नहीं पहचाना। बोले वो दर्जी, कौन सा, आपने कपड़े दिए थे, हाँ हाँ मौलाना का पहचाना। तो क्या हुआ, बोले आपने जो मशवरा दिया था इसके मुताबिक मैंने अमल किया, किसी ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, सबने माफ कर दिया और मेरा कारोबार बढ़ गया। अब तो लोग थान रख के जाते, जितना जरूरत हो फाड़ लो, बाकी रख के वापस दे, कारोबार बढ़ गया। मौलाना मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि इस साल में हज में जा रहा हूं, दुआ करना। गुना चुभेंगे, जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तो गुना चुभेंगे। बहनों के हक अदा करेगा, भाइयों के हक अदा करेगा, पड़ोसी के हक अदा करेगा, हर एक का हक अदा करेगा। तो ये अजीब मेहनत है अल्लाह ने दी है, दावत की जो मेहनत है ये अजीब मेहनत है। सिर्फ कल में ये जो अत्तहियात और दुआएं कुनूत सिखाने की मेहनत नहीं है, खाने के आदाब न सोने के आदाब सिखाने की मेहनत नहीं है, सूरत की तजवीज सिखाने की मेहनत बताइए। मौलाना माशाल्लाह साल में निकले हैं, 8 साल मदरसे में पढ़े, इनको साल लगाने की जरूरत, इनको खाने के आदाब सोने के आदाब नहीं पता, इनको अत्तहियात और दुआएं कुनूत नहीं आती, इनकी कुरान की तजवीज सही नहीं है, नौजवान नहीं, ईमान बनाने के लिए सब होता है। मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, शेख साहब, अरे हजरत शेख मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फजाइल की किताब लिखी, वो जब इंग्लैंड गए थे, मदरसे का जलसा था, तो एक तालिब इल्म ने हजरत की शान में नात नजम जो पढ़ते हैं आमतौर पर मदरसे में, वो पढ़ी, उसकी हजरत शेख की हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ थी। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह जिस कमरे में बैठे थे वहां भी स्पीकर लगा था, वहां स्विच भी थी, तो हजरत शेख रहमतुल्लाह स्विच बंद करवा दी और धाड़े मारकर रोने लगे, धाड़े मारते और रोते रोते यूं कहा, जकरिया का खात्मा अगर ईमान पर हो गया तब तो ये नात ठीक है, और अगर जकरिया का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो ऐसी 1000 नात भी मुझे अल्लाह के नजर भी मिले। जिन्होंने फजाइल की किताब लिखी, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये तो मसला आखिरत का है, इस आखिरत को हम भूले हुए हैं। हमारी तो बस 24 घंटे की दुनिया दुनिया दुनिया, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। हमने इसको इतना बड़ा मसला बना दिया है कि इस मसले के हल के लिए आदमी जो है आमाल छोड़ रहा है, आखिरत जा रहा है, दुनिया बनाने के लिए आखिरत जा रहा है, नमाज छोड़ के कमा रहा है। अभी कमाया रात आएगी, तू है वो दुनिया जो नमाज छोड़ के कमाई जाए। जो दुनिया नमाज छोड़ के कमाई जाएगी वो दुनिया लड़ाइयां लाएगी, झगड़े लाएगी, फितने लाएगी, बेबरकती लाएगी, टेंशन लाएगी। ये दुनिया बीवी खाएगी तो बीवी नाफरमान बनेगी, बच्चे खाएंगे तो बच्चे नाफरमान बनेंगे। हाँ, हम अल्लाह के बागी बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारें और हमें राहत मिले, हमें चैन मिले, हमें सुकून मिले, कभी नहीं हो सकता। एक रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट ना हो, रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट, और आदमी किसी को लेने गया हो
तो वो बेचारा परेशान रहता है, जहां काला कोट देखता है परेशान बढ़ता है। क्यों? रेल का बागी बना है, एक कानून तोड़ा है उसने। सिर्फ 10 रुपए की टिकट है, एक 10 रुपए की टिकट है, लेकिन वो परेशान रहेगा। क्यों? उसने कानून तोड़ा है। एक रेल का प्लेटफॉर्म टिकट ले जाने वाला रेल में प्लेटफॉर्म पर चैन से नहीं रह सकता। हम अल्लाह की धरती पर चले, अल्लाह का हवा पानी इस्तेमाल करें और हमें राहत मिले, हमें चैन मिले, हमें सुकून मिले, कभी नहीं हो सकता। धोखा है। तो इस वक्त दुनिया में जो मुसलमान परेशान हैं, ये परेशानी की वजह दीन न होना है, माल न होना नहीं है, दीन न होना है। पर उस वक्त तक दीन नहीं आएगा जब तक हम दीन की मेहनत नहीं करेंगे। हर चीज के लिए मेहनत है, और खुसूसन अच्छाइयां लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बुराइयां लाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बोलो, पूरे धर्मपुर में एक स्कूल है जिसमें गालियां सिखाई जाती हैं, कोई बुक्स है जिसमें गालियां लिखी हो, कोई टीचर मास्टर है जो गालियां सिखाता हो। न स्कूल है, न बुक्स है, न टीचर मास्टर है, फिर गालियां कहां से आएगी? हक लाने के लिए मेहनत है, बातिल लाने के लिए मेहनत नहीं है। उजाला लाने के लिए मेहनत है, अंधेरा लाने के लिए मेहनत नहीं है। उजाला लाने की मेहनत छोड़ दो, अंधेरा खुद ब खुद आएगा। इसलिए दोस्तों, अपने हल पर रहम करें और अपने बारे में सोचें, किसी के बारे में नहीं, अपने बारे में। इसी हालत में मौत आ गई तो क्या होगा, ये सोचें। और शैतान क्या धमकी देता है? खबरदार, अभी तो बहुत जिंदगी है, अभी तो बहुत जिंदगी है, जवानी है, घूम लो, फिर लो, मौज मजा कर लो, फिर सुन्नत शरीयत पे चलेंगे, फिर अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे, फिर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। फिर अभी जब फिरोज भाई मुझे लेना है तो मेरी बात चल रही थी, एक अभी काफी में जिस दिन इस्तेमाल था ना, अभी 20 दिन तो मैं वहां खवास की मुलाकात में गया था, एक साहब को लेकर आए तो जोर में तो थे, फिर वापस चले गए। मैंने फोन किया, कहाँ हो? बोले यार अजीब हुआ। क्या हुआ? मुझे हमारे रिश्तेदार सूरत में रहते थे, 20 साल का जवान बच्चा, तो डीमार्ट में जॉब करता है, अच्छी पोस्ट करता है, अच्छी तनख्वाह भी थी। तो वो सूरत से ट्रेन में जा रहा था और सीने में दर्द हुआ। उसने फोन किया, तो मुझे सीने में बहुत दर्द हुआ था। तो ट्रेन कहाँ पहुंच? बोले कि तू उतर जा, मैं ठीक पहुंचता हूँ। ठीक है, तो वो उतर गया। 10 मिनट में इंतकाल हो गया। 1 साल हुआ है निकाल, बीवी उम्मीद से है। वही इनके रिश्तेदार थे जिनके बारे में फिर बात चले, इसी हफ्ते की बात, इसी महीने। तो भरोसा है जिंदगी। शायर कहता है, क्या भरोसा जिंदगी का, जिंदगी बुलबुला है पानी का। एक परपोटा है जिंदगी, एक परपोटा है, कब फूट जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हम अपने हाल पर रहम खाएं और अपने हाल पर रहम खाकर खुद की तरतीब खुद बनावे। भूख लगती है, खुद खाना खाते हैं। हर चीज जरूरत हमारी दुनिया की जरूरत खुद करते हैं, कोई तस्कील वसूली की जमात नहीं आती। जैसे और कामों में कोई तस्कील वसूली की जमात नहीं है, ऐसे ही मुझे मरना है, कब्र में जाना है, मुझे आखिरत बनानी है। इसके लिए अल्लाह ने मुझे यही एक मौका दिया है, कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो हम सब अपनी तरतीब बनावे। कब तक लोग आकर हमको कहे, समझावे, हमारे उजर का हल बतावे, फिर हम निकले? खुद तरतीब बनाओ, सोचो कब तक ये माल के पैसे, पैसों का माल के पैसे, पैसों का माल खाते हो क्यों? कमाने के लिए। कमाते हो क्यों? खाने के लिए। तो ये दो इसलिए अल्लाह ने भेजा है, पेट भर लेना, बच्चे पाल लेना। ये तो जानवर भी कर लेता है यार, ये भी अपना पेट भर लेता है, बच्चे पाल लेता है। हम तो अशरफुल मखलूक हैं। हम दुनिया में एक अजीब मकसद के लिए आए हैं। खुद दीनदार बनते, दीन की मेहनत करते, हमारी मेहनत से, हमारी कुर्बानियों से दीन जिंदा होता, हजारों लोग दीनदार बनते और कयामत के दिन वो हमारे नाम अमाल में होते। एक अजीब मकसद के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है, लेकिन हम तो दुनिया में आकर फंस गए। दुनिया 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 दुनिया। इसे अपने हाल पे रहम खाओ और अपनी तरतीब बनाओ। कल से एक जमात जा रही नकद,
बताओ कल से चिल्ले के लिए कौन कौन तैयार है? आपके लिए नकद नहीं है। आपके यहाँ इज्तिमा जब था उसके बाद 20 दिन हो गए, बहुत सोने इरादे वादे किए थे, किसी वजह से नहीं जा सके। उस जमात पर 25 दिन शायद हो गए किशन दिन, लेकिन आपकी जो जमात किशन दिन गई उसमें बहुत सौ की तस्वीर हुई होगी, बहुत सोने इरादे वादे किए होंगे, तो नहीं जा सके। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया। उसी वापी के इज्तिमा में जिले के साथियों ने तय किया आइंदा कौन सी आवाज लगानी है, बोले 17 तारीख 17 है। एक बिस्तर वसूल हुआ है और बहुत सारे नाम हैं। इंशाअल्लाह इसी मजमे में से जमात बन सकती है। 17 के अपने 18 कर लेंगे, 19 कर लेंगे। हमारा कोई अरफा तो है नहीं, इसको नहीं बदल सकते, लचक है हमारे यहाँ। तो बताओ 1 के 2 दिन में जाना है, चिल्ले में जाना है, जल्दी जल्दी नाम बताओ, दुआ कर रहे हैं। अब आपकी बोलने की बारी है। उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो खर्च करेंगे 1 पर 10 अल्लाह दुनिया में देंगे, 1 पर 7 लाख अल्लाह आखिरत में देंगे। अल्लाह के रास्ते में दुआ ऐसी कबूल होती है जैसे बनी इसराइल की नबियों की दुआ कबूल होती। हमारे काम दुआओं से बनेंगे, पैसों से काम नहीं बनते, दुआओं से बनते हैं। और वो अल्लाह ने दिखाया कोरोना में, लोग ऑक्सीजन के लिए पैसों की गड्डियां लेके खड़े रहते थे, लेकिन नहीं मिला ऑक्सीजन और चले गए। वो ऑक्सीजन अभी हम बैठे बैठे ले रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे अभी हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। वरना मच्छलियों के लिए तो ऑक्सीजन के लिए घूमना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमको बैठे बैठे ऑक्सीजन दे रहा है। बैठे बैठे, सोते सोते, नहाते नहाते, खाते खाते ऑक्सीजन मिल रहा है। मछली को बैठे बैठे नहीं मिल सकता, उसको फिरना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है, ये सब नेमत है अल्लाह ने, इसकी कदर करें और निकले अल्लाह के रास्ते में। तो कौन कह रहा है? साल का चिल्ला भी नहीं लगा सकता। वो खुद बोले, हाँ, सर आंखों पर अल्लाह की जान में, माल में, ईमान में, अमाल में खूब बरकत है। आमीन तो कहो यार। आमीन कहने वालों को भी अल्लाह कबूल करे। और होता है तो जवान क्या करेंगे? 2 भाई एक की तरतीब बनाओ, बाप बेटा 2 एक की तरतीब बनाओ। जिसका वक्त नहीं लगेगा वो सर का दर्द बनेगा। निकलो मेरी बात, जिसका वक्त नहीं लगेगा वो सर का दर्द बनेगा। वो इतना ही दुनिया का पुजारी होगा। मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, वो तो कितने बजे आता है, मैं यहाँ भी जाता हूँ, वहां भी जाता हूँ, ये पता नहीं। देखो दीन नहीं होगा ना, दीन तो जाहिर में मोहब्बत भाइयों में नजर आएगी, वो दिमाग की मोहब्बत होगी। मोहब्बत नजर आएगी लेकिन वो दिमाग की मोहब्बत है। और दीन है तो दिलों की मोहब्बत होगी। तो मुझे किसके मुकद्दर का मिला है आपको क्या खबर है? वो ये सोचेगा मेरा भाई है, मेरा भाई है। दीन है तो ये सोच बनेगी, और दीन नहीं है तो दिमाग की मोहब्बत। मैंने देखे ऐसे तो एक शटल ऊंचा दोनों को हाथ लगाना पड़े, एक ताला ये खोले, एक ताला ये खोले, सगे भाई, और ऊंचा करने में भी दोनों सर की ताकत लगावे। है क्या? दिमाग की मोहब्बत है। जाहिर में नजर आ रहे मोहब्बत से रह रहे हैं, लेकिन अंदर ख्याल ये है। अल्लाह हिफाजत करे। ये बहुत खतरनाक है दुनिया, ये कब किस पर जादू करें खबर नहीं, कब 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 किस पर जादू हो जाए। करो यार, अपनी जरूरत समझे के निकल लो। आपका चिल्ला लगाने हमारा 1 रुपए का कमीशन नहीं है। हम जो कुछ कह रहे हैं आपके नफे की बात है, आपकी भलाई की बात है। हो सकता है हम अभी आपको जालिम नजर आ रहे हैं, खाट की कसाई नजर आ रहे हैं, लेकिन वक्त लगा के आओगे, दुआएं लोगे, अल्लाह भला करे। ऐसा इलाज नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलना ऐसा है।
आदमी की सही रहबरी होती है, वरना वो फंसता है। ये तो दलदल है, दुनिया क्या है? दलदल। दलदल का क्या होता है? आदमी जू बाहर निकलने को अंदर जावे, जू बाहर निकलने को अंदर जावे। दुनिया की मोहब्बत जब अंदर आती है ना तो कड़वी चीज मीठी लगती है। किसी को सांप ने डस लिया हो, ये देहात वाले सांप का जहर उतरा कि नहीं उतरा वो देखने के लिए क्या करते हैं पता है? नीम के पत्ते चबाते हैं। अगर ये नीम के पत्ते है इसको जो है मीठे लगते हैं तो समझते हैं अभी जहर नहीं उतरा, और कड़वे लगते हैं तो फिर समझते हैं जहर उतर गया। हालांकि नीम के पत्ते मीठे हैं, कड़वे हैं, लेकिन क्यों मीठे लग रहे हैं? सांप का जहर चढ़ा है। ऐसे ही दुनिया की मोहब्बत का जहर जब चढ़ता है ना तो हर कड़वी चीज मीठी लगती है। माँ बाप को सताना बहुत कड़वा लेकिन मीठा लगेगा, भाइयों में लड़ना बहुत कड़वा लेकिन मीठा लगेगा, नमाज छोड़ना बहुत कड़वा लेकिन मीठा लगेगा, झूठ बोलना बहुत कड़वा लेकिन मीठा लगेगा। क्यों? दुनिया की मोहब्बत का जहर चढ़ा है। कंपटीशन आएगी, और भाइयों में अगर दीन नहीं है और कंपटीशन आई तो अल्लाह रहम करे। हमारे कारी जहीर साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की कब्र को दूर से पड़ जाए। तो यूं क्या है कि दो भाइयों में बहुत कंपटीशन, एक ही मार्केट में दोनों की दुकान, तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। तो फरिश्ते ने आकर कहा जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन डबल भाई को मिलेगा। कितना? डबल। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन जो भाई है ना उसको डबल। तो ये आदम का बच्चा इंसान कैसा है? उसने उस फरिश्ते से कहा मेरी एक आंख खोल। तुम लोग सो रहे हो तब बोलो ना तो सामने वाले की यहां तक पहुंचेगा। इसलिए अपने हाल पे रहम खाओ और निकलो। तबलीग कोई बरकत के तौर पर करने का काम नहीं है, तो जिम्मेदारी का काम है। और जिम्मेदारी क्या है? अपने आप को दीनदार बनाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चलो चिल्ला लगा दो, फिर 3 बटन खुले रखकर फिर पूरे धर्मपुर में अपना नाम ले लेना, चिल्ला लग गया तो इसी चिल्ला नहीं लगाना। दीन आवे, सुन्नत शरीयत आवे, दुनिया से बेरगमती आवे, आखिरत का फिक्र आवे, नमाजों में खुशू गुजू आवे, ये मकसद है वक्त लगाने का। निकलो निकलो, निकलना बड़ा है, निकलना नहीं है। निकलने के पीछे मकसद है। जैसे वुजू बड़ा है, वुजू नहीं है। वुजू के पीछे मकसद है, इबादत करने के लिए वुजू है। ऐसे अल्लाह के रास्ते में क्यों निकलना है? भाई दीन आवे, सुन्नत शरीयत आवे। तो कोई हिम्मत करो नहीं यार, आप लोग इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे ध्यान से आप लोगों ने बात सुनी, बात समझ में आई, फिर से अपने शुरू कर देना है भाई। क्या कहता है मुसैब? मैं तो ये चाहता था कि ये सब खुद बैठे, खुद तरतीब बनावे। ये 2025 में कब जाऊंगा? तो सब वक्त लगाए हुए साथी है, नए साथी थोड़े हैं। वो तो 26 हो गया, यहाँ 25 का बाकी, उसका क्या? उधार तो सब लिखा देंगे। तबलीग का इतना उधार है, अगर ये वसूल हो जाए तो दुनिया में हिदायत चल जाए। चौपड़े के चौपड़े भरे हुए हैं, बल्कि बाजे नाम तो वो हैं जो चौपड़ों में है और आदमी कब्रिस्तान में है। वो कब्रिस्तान में और नाम डायरियों में सब लिखा देंगे। हमको तो नकद चाहिए, नकद। चलो नकद का दर्जा आखिरी जो भाई फिरोज ने कह दिया वहां तक, 25 तक का बताओ। इसके बाद आपके 2 राउंड जोनों के आएंगे। अगले हफ्ते मशवरा होगा गुजरात का, उसमें शायद तारीखें मिल जाएंगी, तो दोनों राउंड की जमातों की सीले की वो नाम आ जाएंगे। इस्तेमाल से जाना है 4 महीने के लिए, बताओ। हम भी व्यापारी है माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब दोनों भाई जाओ उससे
اسے بھی جائے گا. چلیے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آپ کا تو رواج ہے دو کو نکلنے کا. یہاں کے دو جا رہے ہیں ماشاء اللہ. طارق بھائی باپ بیٹے گئے, پھر وہ الیاس خان کے 2 بھائی گئے, 2 بیٹے گئے. اچھا ہے. ہم ایک ساتھ ایک مرتبہ 4 بھائی گئے ہیں. ہاں 5 بھائی تھے, ایک بھائی گھر تھے, 4 پارٹی تھے. وہ بھی اس میں 2004 میں نقد جماعت بنانے کے لیے میں کچھ اور جام نگر عبداللہ جنرل کے ساتھ, فضل جی بناسکاٹھا اور مہسانہ, حاجی ایوب صاحب ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے, مولوی عثمان صاحب کے ساتھ سورت اور نوساری. ہاں نقد جماعت ہر 2 دن ہمارے بڑے بھائی جانتے ہیں. ان کا سال لگا ہے فرانس اور انگلینڈ 86 میں. خیر تو بھئی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کے لیے بہت سب کو کھانا پڑتا ہے. 4 بھائی تو 4 کو کھانا پڑے گا. ایک کھائے گا 4 کا پیٹ بھر جائے گا. ایسے آخرت کے لیے سب کو جانا ہے انڈیپینڈنٹ. بولے 25 کا حساب دو ہم کو. آپ کا پورا دھرمپور جو ہے نا 4 جماعتوں کی لاش ہے. 2024 میں 7 جماعت چلنے کی, 1 جماعت 4 مہینے کی گئی. 25 کا 8 مہینے ہو گئے, صرف 2 جماعتیں گئی ہے. 4 مہینے باقی ہے سال پورا ہونے میں. تو کتنی جماعتوں کا لاس ہے؟ پچھلے سال 7 جماعت چلنے کی, 1 جماعت 4 مہینے کی. اس سال صرف 4 چلنے کی 2 جماعت, 4 مہینے کی 1 بھی نہیں. یہ تو پچھلے سال سے بھی نیچے گئے. کیا جواب دو گے بزرگوں کو؟ کم سے کم یہ ووٹ پوری کرنی ہے. اتنا تو ہو جائے پچھلے سال جتنا. بولتے نہیں ہیں, بولنا شروع کرو. 25 کا چلہ کی بات کرو, اور استعمال سے جانا ہے تو 4 مہینے کی بات کرو. چلو یہ 2 آپشن ہے. ماشاء اللہ. یہ جو ہمارے باؤ بھائی جو وصولی لے کے گئے تھے, ان کی اور دوسرے کون بولو نے وصولی کیوں دی؟ یہ تو غلط ہے یار. سب کہتے ہیں 2 آدمی جب تمہارے پاس آئے تو خوش ہو جاؤ. ایک چندے والے اور ایک تشکیل والے. تشکیل والوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے جان مال صحیح جگہ لگے, اس سے اللہ نے بندے کو بھیجا ہے. تو انہوں نے بھی وصولی دی, آپ کو بھی وصولی دی ہے. اب جانا ہے آپ کو تو غلط اس سے لے کے آ جانا ہے. اجڑ تو رہیں گے. آپ یہ سمجھے میں سب کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا پھر اللہ کے دین کا کام کروں گا, کبھی نہیں ہوگا. دنیا وہ جگہ ہی نہیں ہے. کبھی دانت ہوگا تو چبانے کا نہیں ہوگا, چبانے کا ہوگا تو دانت نہیں ہوں گے. دنیا اسی کا نام ہے. اور یہ نوروں کا کام ہے. جو نورے ہو فارغ ہو جائے, مشغول لوگوں کا کام ہے. لگا گیا انشاءاللہ پھر بہت امن آئے گا, سکون آئے گا, فائدہ دیکھو گے آپ. بولو نہیں یار, اتنے سمجھدار لوگ ہیں, کیا کرو گے آپ؟ مال کے پیسے, پیسوں کا مال, مال کے پیسے, پیسوں کا مال, رب کے چلے جانے کا سب. نہیں سوچو میری بات غلط ہو تو آپ کو ہم واپس دے لیں گے ہماری بات. کب گئے تھا بات گئے نہیں پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی قبر آخرت بنانے کے لیے جانا ہے. تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے, ہماری اپنی ضرورت ہے. کھانا ضرورت ہے, سونا ضرورت ہے, نہانا دھونا ضرورت ہے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں جانا اپنی ضرورت ہے. جسے زندگی میں دین لانا ہے. گھر میں نمک نہ ہو تو گھر میں نمک لانے کے لیے محنت ہے. جب نمک جیسی چیز بغیر محنت نہیں آ سکتی تو اتنا بڑا دین جو ان کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے وہ نمک سے بھی گیا. یہ بھی محنت چاہتا ہے, قربانی چاہتا ہے. لوگ فیروز میں جا رہے ہیں کل ماشاءاللہ لائبیریا 1.5 لاکھ خرچہ. فیروز بھائی کو پیسوں سے محبت نہیں ہے. اب بولو نہیں یار کیسے بھاگتے ہیں. تو ہر ایک کو ہے, لیکن اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا ہے تو چھوڑ دیا. چلو
کرو بھائی کرو, ہم آپ کے محسن ہیں, ابھی ہم آپ کو ظالم نظر آئیں گے لیکن وقت لگاؤ گے تو دعائیں دو گے. اور بولے سب آپ کیا کرو گے؟ 24 بھائی ہو, ابا ہیں, اچھا تو دونوں کو جانا چاہیے, جیسے وہ طارق اور اس کے ابا دونوں گئے, ایسے بھی ابا نے آج دکان بند کر کے جانے کا طے کیا ہے, تو چولہا تو دونوں کا الگ ہوگا. چلو پھر ابا کے آنے کے بعد جانا ہے, ٹھیک ہے. اور بولے یہ کیا کریں گے؟ خود کی تشکیل کرو نہیں, یار مجھے کیا کرواتے ہو؟ خود کو سمجھاؤ, خود کو سمجھاؤ کہ یار کیا ہوگا آخر, کسی حالت میں موت آگے کیا ہوگا. چلو بولو جون کی جماعت میں بولو, چلو پہلے راؤنڈ کا بولو, پہلے راؤنڈ دیکھو جلدی فٹ فٹ. وہ تو اپنے علاقے میں چلنے کا پیدل تمبو لے کر, ماشاء اللہ. اور بولے چلو جلدی, اپنے علاقے میں چلنے کا ہے. ماشاء اللہ. اور بولیں ماشاء اللہ. اور بولیں کیا نام؟ امرا. یہ کیا کریں گے؟ بھائی آپ کو تو دونوں کو کل جانا ہے. جودھ پور جانے کا ہے. وہ جناب جودھ پور پالنپور کے آگے بہت مزے کا روٹ ہے, میں لگایا میرا, مزہ آئے گی. ابھی ایک جا کر آئے, بہت مزے کا روٹ, مزہ آئے گی. سکھی ہوا, لپ سے سب صاف ہو جائیں گے. نہیں واقعی میں وہاں کے ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پردوشن نہیں ہے, سکھی ہوا. کوئی دم کا مریض ہو اس کو یہاں بھیج دو, اچھا ہو جائے گی. کہتے ہیں ریگستان پرانے میں نے کہا نا, وہاں دیکھنے کو ملے گا. اور بولیں یہ کیا کریں گے؟ بولتے آ رہا ہے, بولنے نہیں ہے. بولا دو زبان پر. کب سے؟ اچھا چلو اعلان سن لو. ایک بات طے کر لو, نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے, خصوصاً فجر. ایک نمازی کم نہیں ہونا چاہیے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نمازی کم ہوا فجر میں, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے نماز پڑھتے سلیمان کے گھر گئے. اور میں کیا بات ہے, سلیمان فجر کی نماز میں کیوں نہیں تھے؟ والدہ نے کہا وہ رات بھر نفلیں پڑھتے رہے, صبح اٹھتے ہی آنکھ لگ گئی. آپ رضی اللہ عنہ فرمایا رات بھر نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. ایک تو ہماری پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے. تو نیت کرا دور صحابہ میں اگر کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹتی تھی تو کتاب میں لکھا ہے 3 دن تک سمجھوتا تھا. تکبیر اولیٰ کا اہتمام, گھر میں تعلیم کا اہتمام. گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے, ہم تو پڑھنے. بچے 7 برس کے ہو جائے نماز کا حکم کرو, 10 برس کی ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو, حدیث کا مفہوم. تو اس لیے آسان راستہ ہے گھر میں تعلیم کریں. کیا کریں؟ یہ فضائل کی کتاب میں اعمال کے بھاؤ لکھے ہیں. آج ہماری عورتوں کو سب وقت پتا ہے, آلو, ٹماٹر, بیگن, سب چکن, سب کا بھاؤ معلوم ہے. سبحان اللہ پر کیا ملے گا, الحمدللہ پر, اللہ اکبر پر, الف لام میم پڑھنے پر,
यकीन परवरी पर, मेहमान नवाजी पर, अलिफ लाम मीम पढ़ने पर, जो नमाज इसराफ के साथ पढ़ी जाएगी इस पर, इसराफ पर, चाश पर, अवाबिन पर, तहज्जुद पर, क्या मिलेगा? वो अमाल के भाव इस फजाइल की किताब में। इस किताब का नाम ही वो है, फजाइल अमाल, अमाल का भाव। तो नियत करो अपने घर में तालीम का एहतमाम करेंगे। रोजाना 10 मिनट पढ़ो, हर बाब में से पढ़ो। हिकायत साहबा में से एक हदीसा पढ़ो, फजाइल नमाज, फजाइल जिक्र, फजाइल तबलीग, हर बाब में से पढ़ो। फिर देखे घर में माहौल बनेगा, घर में से अलाएं बलाएं निकलेगी, घर में सुकून आएगा, सास बहू में मोहब्बत आएगी, देरानी जिठानी में मोहब्बत आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस का मफहूम है जन्नत के बागों से गुजरो तो खूब चरो। साहबा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बाग क्या है? आपने फरमाया जिक्र के हल्के। क्या हम नहीं चाहते हमारा घर जन्नत का बाग बने? तब बोलो खरे यार, कौन कौन चाहता है? तो अपने घर में तालीम का एहतमाम करें। किताब नहीं है तो खरीद लें, 200 रुपए की करीब किताब आती है, दोनों हिस्सों में से पढ़ो बारी बारी। फिर देखो इसके अनवारात और इसके बरकत। हाँ, घर में माहौल बनेगा। तो दूसरी बात ये कही कि भाई घर में तालीम करनी है। तीसरा जो है, अपने यहाँ मोहल्ले में कोई एक भी बेनमाजी न रहे, इसलिए मस्जिद और जमात बनी है। मस्जिद और जमात कोई मस्जिद उस कौम बिरादरी का नाम नहीं है। जितने मुसल्ली जहां नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद और जमात के साथ ही है। इनका पहला हदफ ये है कि 100% नमाजी मर्द मस्जिद में आके पढ़ने वाले बने, औरतें घरों में पढ़ने वाली बने। तो एक तो जो है मस्जिद और जमात में बैठे, बड़ा कब बैठ के आप क्या, बहुत अच्छा, बड़ा काबिल मुबारक है वो मुसलमान जिसकी दीन की इब्तिदा अल्लाह के दीन की मेहनत की फिक्रों के साथ है। मैं आपको एक सवाल करूं, किसी को अल्लाह के नबी का बाल मुबारक मिल जाए कितना किस्मत वाला है? किसी को अल्लाह के नबी का अमामा मुबारक मिल जाए वो अपने आप को कितना किस्मत वाला समझेगा? हालांकि ये बाल मुबारक, हमारा अमामा मुबारक, उसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से है। मैं आपको ये पूछता हूं, किसी को नबी वाला गम, नबी वाली कुरन, नबी वाली फिक्र मिल जाए जिसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलब अथर से है, वो कितना किस्मत वाला है? इन फिक्रों को लेकर मस्जिद और जमात में रहना। और सिर्फ बैठना ना हो, आगे जो है 22 घर हैं, 22 घर की 15 दिन के अंदर 100% लोगों बालिग मर्दों की मुलाकात हो जाएगी। 15 दिन के अंदर ये मियाँ जी मेरा साहब कहते थे, तो 100% घरों की मुलाकात, और उसमें सब बात रखो। हमारे फुरूत तो 6ठा नंबर है, इसके ऊपर 5 नंबर है, ईमान की, अमाल की, तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की, सब बातें करें। फिर वो कुर्बानी में जिस सतह पर है उससे आगे की बात करें। महीने के 3 दिन बाकी 2 लेने में मस्तूरात के हफ्ते वाली तालीम में इनकी मस्तूरात पहुंचती कि नहीं पहुंचती, घर में तालीम होती कि नहीं होती, इनके बच्चे मकतब में आते कि नहीं आते, बच्चे मकतब में ना आते तो बच्चों को मकतब में भेजने के लिए फजाइल सुना रहे। ये बच्चे अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिए हैं, इनके दिल में अगर कुरान नहीं होगा तो इनका दिल वीरान होगा, करम मर के कब्रों में जाएंगे। अगर हमने इनको कुरान नहीं सिखाया तो ये फातिया क्या पढ़ेंगे? तो मकतब की भी फिक्र हमारे तबलीग के उमूर में है, मकतब की भी फिक्र हो, मस्तूरात की तालीम मोहल्ले वाली हफ्तारी में होती है उसके अंदर भी 100% बहने पहुंचे उसकी भी फिक्र। फिर हफ्ते में एक मरतबा जैसे आज आपका गज का दिन था, एक बात हो 2 नमाजों का बीच का वक्त फारिग करके, मगरिब से ईशा होता है ना, तो मगरिब से ईशा का वक्त फारिग करके हम जो है गश में जुड़े। हफ्ते के 168 घंटे हैं, ये 168 घंटों में 2 गश करने, एक पहला गश और एक दूसरा गश, एक अपनी मस्जिद का, एक अपने पड़ोस की मस्जिद का। लोग जिस्म की पिकनिक मनाते हैं, संडे मनाते हैं, जैसे रूह की पिकनिक के लिए हमारे यहाँ पूरे शहर का मीनारा मस्जिद मस्जिद पर जुमेरात के दिन इज्तिमा होता है। सब साथी, देखो अभी आपने अल्लाह रसूल की बात सुनी, दीन की बात सुनी, सब अपना जायजा ले दिल की कैफियत। ये मौका अगर हर हफ्ते हमको मिलता है माशाअल्लाह, मीनारा मस्जिद जमातों की बात होती है, आए हुए साथियों की बात होती है, मुकामी साथियों की बात होती है, तो वहां पर जावे। और सर से इसराक तक का पहला दर्जा है, आखिरी दर्जा मगरिब से ईशा। तो कौन कौन नियत करता है मैं जाऊंगा इंशाल्लाह जुमेरात के दिन मीनारा मस्जिद में। अपना कारोबार हफ्ते में एक मरतबा अगर आधा पौना घंटा जल्दी बंद कर दें, मर नहीं जाएंगे, ये कुर्बानी कहलाएंगे।
اور اللہ دیکھے گا میرا بندہ میرے دین کی نسبت پر اپنا کاروبار جلدی بند کر دیا اور جلدی وہاں پہنچ جائے. تو اتنا کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. دعا کرو. آج آپ کی آخری دن ہے پھر چلے جائیں گے تو برابر ہے بڑھ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفرهم بما شئت إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ بے شک مجرم ہے، پاپی ہے، باغی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. آپ تک آپ ہی کی زمین پر چل کر آپ ہی کا ہوا پانی استعمال کر کے ہم نے آپ ہی کی نافرمانیاں کی ہے. ہمارے گناہوں کے لیے کسی جواب کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کی رحمت زیادہ وسیع ہے. وہ وسیع رحمت والے ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ تیرے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے. اس امت کے حال پر رحم فرما. اس امت کے حال پر کرم فرما. امت کی بگڑی کو بنا دے. امت کو نیک اور ایک کر دے. امت کو جہنم سے جنت کی طرف پلٹ دے. امت کی پسی کو بلندی سے بدل دے. امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. امت کی جہالت کو علم سے بدل دے. امت کے قلوب کو دنیا سے آخرت کی طرف پلٹ دے. دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. موت اور بعد الموت کی تمام گھاٹیاں آسان فرما. اچانک کی موت سے حفاظت فرما. دب کر ڈوب کر جل کر کٹ کر مرنے سے حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ کی موت سے حفاظت فرما. خودکشی کی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ہاسپٹلوں ایڑیاں رگڑتے ہاسپٹلوں میں آئی سی یو میں مرنے سے حفاظت فرما. مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرما. قبر کے سانپ، قبر کے بچھو، قبر کے بھیجنے سے، قبر میں آگ لگا دینے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے سفر میں ساتھی بن جا. ہمارے گھروں کا تو خلیفہ بن جا. تیرے بندوں نے تیری ذات پر بھروسہ کر کے ارادہ کیا ہے، نام لکھایا ہے. ان کا نام لکھانا، ان کا ارادہ کرنا قبول فرما دے. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، سہولتیں پیدا فرما دے. اس وقت جتنی جماعتیں ملک اور بیرون ملک میں پیدل سواری، مردوں کی، مستورات کی، سال والے علماء اللہ پورے عالم میں جو چل رہے ہیں، سفر وسیل کا ساتھی بن جا. ان کے گھروں کا تو خلیفہ بن جا. ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما. ان کا تو سفر میں ساتھی بن جا. ان کے گھروں کا تو خلیفہ بن جا. اے اللہ آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر نظر بد کی نظر بد سے اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما. اللہ تو ان کی پوری حفاظت فرما. تیرا دیا ہوا جان مال وقت اور صلاحیت کو تیرے دین پہ لگانے کی توفیق عطا فرما. جان مال وقت اور صلاحیت کو غلط جگہ پہ لگنے سے حفاظت فرما. ان بدنصیب آنکھوں نے تیرے دین کو میٹتے ہوئے بہت دیکھا. اے اللہ تو دین کی ہوائیں چلا دے، باطل کو مٹا دے، حق اور حق والوں کو چمکا دے. یہ تیرے بندے تیری محبت میں، تیرے دین کی محبت میں اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اس میں جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، سفید بال والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ہر ایک نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. حافظ قرآن بھی ہے، علماء کرام بھی ہے. اے اللہ سب کی تجاز رکھ لے. سب کی تجائی اجازت تمناؤں کو پوری فرما دے. اے اللہ ہر ایک کے دل کی جائز اجازت تمناؤں کو پوری فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے مفروضوں کی قرضوں کی ادائیگی ایسی سفر صورتیں پیدا فرما. جتنے مسلمان لڑکے لڑکیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑا عطا فرما. جن کی شادیاں ہو چکی آپس میں انبن ہیں ان کے اندر جوڑ اور محبت اور اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اے اللہ جن کے پاس جو بھی اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. اولاد ہے نافرمان ہے ان کو فرما مردار بنا دے. اے اللہ جن کے پاس صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں ان کو لڑکا عطا فرما. جن کے پاس لڑکے ہی لڑکے ہیں ان کو تو لڑکیاں عطا فرما. ہر ایک کے دل کی جائز حاجت تمناؤں کو پوری فرما. مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، اعمال، مکان، دکان، مساجد، مکاتب، مدارس، خانقاہیں، قبرستان، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما.
धरती की पूरी हिफाजत फरमा। इस मुल्क में तो अमन अमान कायम फरमा। इस मुल्क के एक एक बाशिंदे को हिदायत अता फरमा दे। इस मुल्क के एक एक बाशिंदे को हिदायत अता फरमा दे। नफरतें खत्म फरमा दे। आपस में जोड़ मोहब्बत इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई की लाइन की दुआ मांगी, तमाम खैर भलाइयाँ हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा। जिन सर और फितन से पना चाहिए, तमाम सर फितन से हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआ इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला। देखो 9-5 हुई है जिनका वुज़ू